اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا صدق اللہ العظیم۔ جی السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ موڈ مزاج کام روٹین دوست احباب سارا کچھ فٹ فاٹ ہے؟ اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ اچھا جی، آج میں نے کمیونٹی کے اندر بھی ایک چھوٹی سی پوسٹ تقریباً 6 بجے کے قریب لگائی تھی کہ جس کے اندر میں نے بولا تھا کہ آج ہمارا لاسٹ سیلنگ سیشن ہے، اس میں ہم آلموسٹ ڈن کر رہے ہیں اپنی سیلنگ کو، وچ از 90 to 100%۔ بیسیکلی 100% کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ پورٹ فولیو ہم نے نہ ہونے کے برابر وہ رکھنا ہوتا ہے۔ وہ ہماری جو پروفٹس ہوتے ہیں سمجھ لیں وہ بچے پڑے ہوتے ہیں، جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے آلموسٹ وہ نکل جاتی ہے جب ہم ٹوٹل سیل میں آتے ہیں۔ ایبسلوٹ سیل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ آپ کی باہر آ جائے گی، جو پروفٹ پڑا ہوگا وہ پروفٹ جتنا مارجن ہم اس میں رہنے دیتے ہیں، 100% کبھی بھی آؤٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کافی کوشچنز مجھے رسیو ہوئے ہیں کہ سر آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ ادھر آ کے انٹرنیشنل مارکیٹ کس لیول تک جائے گی، کس لیول تک یہ میکسیمم دوبارہ نیچے آ سکتی ہے، اور کہاں پہ ہم یہ انٹریز لیں؟ دیکھیں جی، یہ سارے کوشچن جو آپ کے ہیں یہ ویلڈ کوشچنز ہیں، لیکن یہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اس ٹائم کا آنا ضروری ہے۔ کچھ دن ہمارے ایسے گزرے ہیں جب مارکیٹ آل ٹائم ہائی آل ٹائم ہائی آل ٹائم ہائی کی طرف چلتی گئی ہے، اور سٹل کل کا دن بھی اسی طرح سے تھا اور آج کا دن بھی اسی طرح سے تھا کہ آل ٹائم ہائی ہم نے ایک نیا بنایا ہے۔ تو جہاں پہ آل ٹائم نیا بنتا ہے تو اس کے بعد پھر یوں سمجھ لیں سارے ٹیکنیکل انڈیکیٹرز ہمارے فیل ہو جاتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ پھر ہم صرف ایک چیز کہتے ہیں کہ یہ پرائس ڈسکوری موڈ کے اندر ہے، پتہ نہیں اس کا ٹاپ کہاں بنتا ہے کہاں بنتا ہے۔ اب بات یہاں آ جاتی ہے، کیا ہمیں یہاں پہ سیل لینی چاہیے تھی کہ نہیں؟ اس ٹائم کے اوپر سیل بنتی بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ہمارا ایک اصول ہے، ہم نے جہاں پہ بھی انٹری کرنی ہوتی ہے نا، وہ انٹری ہم دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو ایگزٹ پلان بھی اس انٹری کا دے دیتے ہیں کہ بھائی جو پرانے ساتھی ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، نئے آنے والے دوستوں کے لیے کہ بابا ہم نے 2,09,000 روپے میں پیس جب اٹھایا ہے تو ہم نے بولا ہے اس کو ہم نے 20 پہ نکالنا ہے، بیچ میں جو راستہ طے کرے، جتنا سفر طے کرے، ہم اس سفر کے ساتھ ہیں۔ آپ نے دیکھا مارکیٹ اوپر نیچے کرتی کراتی جب وہاں تک پہنچی 2,20 تک، ہم نے اس کی سیل لے لی۔ ہم نے پھر یہ نہیں سوچا کہ مارکیٹ تو ابھی بھولش ہے، یہ یہاں سے اوپر نکل جائے گی، یہ کر جائے گی، سینٹیمنٹ اس طرح سے ہیں تو اس طرح سے، اب کیا کریں اس کو؟ دیکھیں، ہم نے پلان بنا لیا تھا یہاں سے لے کر یہاں تک کا سفر۔ اب یہاں سے ہم نے جب اپنا سفر سٹارٹ کیا، بیچ میں جو بھی رکاوٹیں آتی گئیں، جب ہم یہاں تک پہنچے ہم نے اس کو جسٹ ایگزیکیوٹ کیا، یہ ختم ہو گئی کہانی اس کی۔ اس کے بعد مارکیٹ وہاں سے ہلکا سا اوپر گئی، ہم نے اس کو کچھ نہیں کیا، چھیڑا ہی نہیں، انٹری نہیں اٹھائی۔ مسئلہ یہ ہے، ہمارا انٹینشن یہ ہے، ہمارا جو سمجھ لیں مشن یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم ایک چیز کی انٹری اٹھائیں، مثال کے طور پہ 50 لاکھ روپے کی اگر ہم اگزامپل لیں تو میں 50 لاکھ روپے کا گولڈ یہاں پہ اٹھاتا ہوں اس لیول کے اوپر، جب یہ یہاں تک پہنچے گا، یہ 55 سے 56 لاکھ روپے کا ہو جائے گا، میں اسے نکل آؤں گا۔ یہاں پہ 50 لاکھ لگایا، ادھر 56 ہو گیا، نکال لیا باہر، 6 لاکھ پروفٹ ہو گیا نا، جان چھوٹ گئی۔ اب اس 6 لاکھ روپے جتنا گولڈ ہم اپنے پاس رکھیں گے جسٹ، اور یہ باقی جو ہمارا تھا 50 لاکھ، اس کا ہم نے سیل کر دینا ہے، ختم۔ اس کو کہتے ہیں ایبسلوٹ سیل۔ اور دوسرا، پھر جب ہم نے دوبارہ انٹری اٹھائی ہے اس کی 19 پہ آ کے، ٹھیک ہے، 19,800 پہ 19,700 پہ تقریباً ایسے ہم نے انٹری اٹھائی تھی۔ اچھا، پھر کیا بنا؟ پھر یہ بنا کہ ہم نے 19 پہ انٹری اٹھا کے ہم نے بولا تھا ہم اس کو 30 پہ سیل کریں گے، 31 پہ سیل کریں گے، یہ ہمارا ٹارگٹ تھا۔ اب یہاں پہ ہم نے 50 لاکھ لگایا، یہ چلتے ٹائم اس نے جتنا لگایا، جب یہاں تک 31 تک پہنچی، ہم نے یہاں پہ اپنی
एग्जिट को कंफर्म करना था। लेकिन अब जो सिनेरियो बना खड़ा था मार्केट का, यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि हम थोड़े से दिन इसमें इंतजार कर लें। जो पोजीशन बन रही है ना यहाँ पे, वो प्योर मैनिपुलेशन की पोजीशन बन रही है। और जो जो मंथ की क्लोजिंग थी हमारी, जबरदस्त सुपर क्लोजिंग थी, ठीक है, फुल कैंडल। तो वहां से मुझे ये उम्मीद थी कि ये इसको 31 पे अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर दूं या इसको थोड़ा सा वक्त दूं। निकलना हमने लाजमी है यहाँ पे। अच्छा, इसको हमने डिसाइड किया कि इसको हमने 3 दिन के अंदर अंदर अपनी एग्जिट को एकदम हम एग्जिट कर देते इसी पॉइंट के ऊपर, वैलिड थी। उसमें हमें कोई रिग्रेट नहीं था बाबा। 10-11 हज़ार रुपए घुसा पड़ा है एक तोले के अंदर, कोई रिग्रेट नहीं था, खुशी थी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने 10 हज़ार पर तोला के हिसाब से उसको उठाया है। अच्छा, जब हम यहां तक पहुंचे ना बाबा, उसके बाद पोजीशन ये बनी कि हमने इसकी जब मंथली क्लोजिंग देखी और नेक्स्ट वीक की ओपनिंग देखी, तो हमने इसको 3 दिन में इसकी सेलिंग रखी। पहले दिन हमने 30% सेलिंग रखी, तकरीबन 31-32 की स्लॉट पे हमने 30% निकाला, फिर 34-35 की स्लॉट में निकाला, फिर आज फाइनली हम एब्सोल्यूट आउट हो रहे हैं 38 पे। हमारे वहम गुमान में भी नहीं था ये 8 हज़ार हम कैच कर लेंगे इसी ट्रेड के साथ। टू बी फ्रैंक, हम तो खुशी से फूले नहीं समा रहे फिलहाल, अल्लाह के फजल करम से। नहीं आपको समझ आ रही क्या? मुश्किल बातें कर रहा हूं। हमने 19 से 20 से एंट्री उठाई, 30-31 में निकलना था। अब 31 से लेकर 38 तक हमें ये जो बोनसेस मिले हैं बहुत हैं, ये हमारी ईदी है। हमने हर सूरत, अब बात आपका क्वेश्चन अपनी जगह पे वैलिड है सर, क्या हमें अब इसको इस जगह पे सेल करना चाहिए? मे बी जिस बंदे ने इसको 32 पे उठाया है, 34 पे उठाया है, उसको पसंद नहीं आ रहा 38 पे निकलना, या जिसने 36 पे उठाया है उसको 38 पे निकलना मजा ही नहीं आ रहा। हमें तो मजे पे मजा आ रहा है ना, बात को समझ रहे हैं? हमने तो हर सूरत इसकी सेल निकालनी है, समझ आ गई? इसी वजह से हमने उसकी सेल की है। फिलहाल जो इंटरनेशनल मार्केट को मैं देख रहा हूं, ईद से पहले पहले तक 25वें रोजे का मैंने आपको टारगेट पहले दिया हुआ कि भाई 25वां रोजा लगने से पहले पहले कोशिश करो मार्केट से निकलो। ये आने वाले 5 दिन क्रूशल हो सकते हैं। बाय द वे, आज कुछ डाटाज हैं, देखते हैं उनका इम्पैक्ट किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट पर पड़ता है। और 2304-5 के ऊपर मैंने ग्रुप के अंदर बड़ा स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि हमने जो है ना इस टाइम के ऊपर 38 के स्लॉट में जैसे ही हम पहुंचेंगे, हमने इसको फौरन से पहले सेल करना है। और रात ही ये बात मैंने बता दी थी कि सुबह 37,500 से लेकर 39 की स्लॉट में जहां पे भी हम पहुंचे, हम अपनी इस एग्जिट को एग्जीक्यूट कर देंगे। और 5 बजे मैंने अपने ग्रुप के अंदर बताया था कि 5 का टाइम हो रहा है, 6 बजे के बाद, और जो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट की थी कि 6 बजे के बाद जो इस प्रीशियस मेटल जिसको गोल्ड कहते हैं, जो इसके अंदर रहा वो हम में से नहीं है। काफ़ी दोस्तों के मैसेज है, सर अब तो हर तरफ से यही आवाज़ें आ रही हैं, निकलो निकलो। आप भी साथ कह रहे हैं निकलो निकलो। भाई हमने उस टाइम पे निकलो निकलो कहा है जब हमें कन्फर्म हुआ है, जब हम अपने उस नफ़े के ऊपर राज़ी हुए हैं जो हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो हमने उसको एग्जिट करना है। सो सिंपल। देखें, किसी को भी गोल्ड का बॉटम या गोल्ड का टॉप 100% क्लियर नहीं होता। एक एनालिसिस होता है, एक प्रोडिक्शन होती है, उसके अंदर बंदे की जो है ना एक्यूरेसी, वो 75% टू 80% एक्यूरेसी के साथ बंदा काम करता है। ह्यूमन ब्रेन है ना, इसकी कैलकुलेशन है, जहां तक वो कर सकता है वो करता है। और इंसान जहां तक हौसला सब्र बर्दाश्त रख सकता है, बड़ा मुश्किल था आप लोगों को इंतजार करवाना 19 से बिठा के। कई दफा 24-25 पे आपकी टांगें कांपी थी, मुझे याद है ना। और मेरे ग्रुप वालों, मैं आपसे भी साथ मुखातिब हूँ, जब 24-25 पे थे आपने क्या बोला था? सर यहाँ से बराए मेहरबानी निकलवा दें, ये हमें 4-5 हज़ार बहुत है। मैंने कहा था सबर। यूं हाथ पे हाथ मार रहे थे, यूं, यार पता नहीं चुगताई बाबा को क्या है, कितना सबर, बस ठीक है, इतना नफा घुसा पड़ा है तो इसको निकालना चाहिए। कंट्रोल करा करा झल झल के तो अनु है जी, असी उत्ते पहुंचे 30 तक। मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, मुझे जहां पे वीएन था, हमने एक टारगेट रखा था एंट्री और एग्जिट, उसी प्लान पे हम बैठे। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि मैं क्यों कह रहा था। मैं ये कह रहा था जिस सफर पे हम निकले हैं, दरमियान में आके वापसी ना निकले, अपनी उस मंजिल तक पहुंच जाए। उसमें देर लगेगी ना, देर दबेर होगी, और क्या। पैसा हमारा अपना है, कोई बैंक से लीज नहीं है, किसी से हमने उठाया हुआ नहीं है। ये होती है अपना इरादा जो मुसम्मम पुख्ता करके बैठना। और उसके आगे जब हम यहां पे पहुंचे, अब जब यहां पे पहुंच गए हम 30 तक, सुनने की बात, 25 पे ये लोग साथ नहीं दे रहे थे।
जबरदस्ती इनको 25 से लेकर 30 तक हमने फोर्सफुली, यू कैन से दैट, फोर्सफुली हमने इनको 25 से लेकर 30 तक रोका है। अब जब 30, 31, 32 पे पहुंचे, अब मैंने कहा यहां पे 30% सेल करनी चाहिए। यही अमला, अमला खास, यही कम्युनिटी मेंबर, यही 70 से 80 लोग जो इधर पर प्रॉब्लम कर रहे थे हमें, तो ये सारे के सारे जब इस स्टेज पे पहुंच गए, अब मैंने यहां पे इनको एग्जिट दिया तो अब इनको तकलीफ थी। सीरियस कह रहा हूं। कहते थे सर अब तो किसी सूरत भी निकलना नहीं बनता। मैंने कहा यहां पे निकलो, जबरदस्ती गला पकड़ के यहां से निकलवाया। सही कह रहा हूं मैं, टू बी फ्रैंक कह रहा हूं। मेरा वे आपको पसंद आए ना आए, मैंने इनके ऊपर जबरदस्ती करके इधर, मैं कहा भाई इधर से निकलना है और बात खत्म। कितना परसेंट सर निकलें, क्या करें? मैं 30% निकल जाओ, यहां से निकले। फिर उसके बाद मार्केट आगे गई, ये वाले बंदे अब क्या करने लगे, देखा हमने आपको कहा नहीं था, हमने आपको कहा था कि यहां पे नहीं निकलना, देखें आज 2-3 हजार घुसा पड़ा है। मैंने कहा 30% निकले थे, 30% और निकलो यहां पे। मरते क्या ना करते, वो फिर ओबे भी तो करना होता है ना बात को, अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर के प्लान के साथ चल रहे होते हैं। तो यहां पे मरते क्या ना करते भाईजान, इन्होंने यहां पे एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद वो मार्केट दोबारा से कुछ ना कुछ डाल के आगे चली गई है। अब ये सारे सच्चा साबित करने लग गए हैं खुद को, ये वाला साहब भी और ये वाला साहब भी। और जिस स्टेज पे हम अब पहुंचे हैं, जहां पे मैंने ऑल क्लियर दिया, फुल क्रिटिसिज्म है इस टाइम पे, यकीन माने, ग्रुप के अंदर, उनकी पर्सनल डिस्कशन में, और बाकी लोग भी। जो चुगताई बाबा को क्या हो गया यार, ये तो मकसद है, तकरीबन पक्की बात होती थी यहाँ पे सेल। मैं अब भी कच्ची बात नहीं कर रहा, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ। मैंने बोला है आज 6 बजे के बाद जो गोल्ड जैसी प्रीशियस मेटल में है, सिल्वर की मैंने एग्जिट नहीं दी, अभी उसका टाइम नहीं है। जब उसका टाइम आएगा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। ਹੁਣ आवाम सियाणी होंदी जा रही है ना, इधर वाली मखलूक इधर पहुंच के ना हूँ दिमाग कम कर रहे हैं। जो नफ़ा जब घुसता है ना, तो दिमाग टिकाने लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। बस ठीक है, इतना ही आज के लिए काफ़ी है जी। तो आप लोगों को प्लान जो देना था, हाँ सच बाबा, प्लान ये है कल फर्स्ट टाइम तक हर सूरत निकल जाओ, वीडियो आज पहुंच जाए, काम हो रहा हो आपके शहर में, निकल जाओ। 38 तक हमारी बेहतरीन एग्जिट हुई है। आपकी 37 900 में हो, 38 200 में हो, 38 500 में हो, मैक्सिमम 39 तक इस स्लॉट में आप निकल के थोड़ा एक हफ्ता एक तो सुकून से बैठो। ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आगे आपने करनी अपनी मर्जी है जी, ठीक है। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, माई यूट्यूब फैमिली, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, माई वुल्फ्स।